First of all, तस्य वाच प्रणवा, हम उस ब्रह्मांडीय ध्वनि कॉस्मिक एनर्जी को रियलाइज करें. We have to recognize and realize the main source of energy which is existing as a cosmic power, cosmic energy, how it works and how it is mentioned into the Rig Veda, how to chant Om. Tasya vacha pranava means Om. Omkar is existing all the powers to create, to give nutrition, पालन पोषण करने वाला, and then destroyer. All the power is existing within the Om. It is not just simple word that Om and that's it. It is bigger than it. We have to realize it. You will feel its power, its energy in your own body at particular location of the chakras. How it works, try to understand that. Within Om we have Brahma, Vishnu, Mahesh. Which kind of energy we want from Om, we have to realize it today. From the beginning, about yoga, we will start from the Omkar. ब्रह्मांड शक्ति का पहला ध्वनि ही ओम थी. कॉस्मिक एनर्जी का मेन सोर्स ओम है. सन इज स्प्रेडिंग द एनर्जी अराउंड द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ ओम, and that is known as gamma waves, and you will feel it from your inside. It will impact with the words. Why we said that Lord Shiva start making, डमरू बजाया ना भगवान शिव ने, वहां से शब्द निकले. वो शब्द कैसे निकले, कहां इफेक्ट करते हैं, एक एक शब्द को अलग से क्यों किया, ए आ ई उ ए, एक सीक्वेंस में क्यों निकले, क ख ग घ क्यों निकले, उनकी ताकत क्या है, वो समझने का. हमारे जो 56 वर्णमालाएं हैं, वो 56 के 56 अक्षर जो हैं, शब्द जो हैं, कितने पावरफुल हैं. बीज मंत्र क्यों है, वो एक एक शब्द क्यों बीज मंत्र है, ये जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम योग के ताकत को नहीं समझ पाएंगे. देखो, आप आए हो योग करने. You are here to understand what exactly the meaning of yoga. But before that, we understand the cosmic energy and how we must realize it within ourselves also. Until unless you are not able to understand this system of energy consciousness, till then you are just reading books. You are collecting the information. You are collecting information. You are not following yoga. Okay? Let's understand what is the Om. It is segmented into the 3 different parts. O, U, Ma. Now problem becomes, few people think that this is a religion part, religious part, Omkar. Everybody cannot do it. Sikhism में एक ओमकार कर दिया. They try to make it separate. Just because of they want to become a separate form, but the cosmic energy won't leave them alone. It will work. They put one Om. Understand one Om what become? They use the mind, put the one in front of it and said एक ही है, ओमकार एक ही है, लेकिन उसमें एक डंडा लगा दिया. उसको समझना है. O exists at the Mooladhara chakra. When we start practicing, it exists in the Mooladhara chakra. Ukar exists at the Manipur chakra. Makar exists at the Brahmarandra. Now we will try this 3 times Om chanting. I will let you know the Om chanting, how to start, where to start, why to start.
O, start with the word O. How we will realize the power of Brahmaji, which exists into the Muladhara and close to the Swadhisthana chakra. That will create the energy. There will be the vibration at that place. On the Muladhara chakra and Swadhisthana chakra, the creation created from there. Creature is created from that place. That's why the energy sources existing in the Muladhara and the Swadhisthana chakra. How to do it? Oh. Now I extend the word O, smaller, both U, Ma. That becomes smaller. I spread, extended, O, so long. Now come toward the Ukar. You will feel the pressure on the abdomen. O. I make Okar small, Ukar extended and Makar small. And you will feel the energy at the Manipur chakra only. Without each other, it is not complete, but we can generate the energy where we want to put it. We want to start fan, we push the button for fan. We want to start the light, we push the button for light. We want heat, we push the button for heat. It is all we can control by ourselves. We can control it. We must have the knowledge about it. Then Makar. Om. Now, this is the time to understand how it will work. We will try 3 times Okar sound, 3 times Ukar sound, 3 times Makar sound, and always keep your eyes on the particular zone to realize, to feel, and to check whether it is working or not all the time. Okay? Now, body upright straight, eyes closed, deep inhale, 3 times Okar sound. Start with O. Again, inhale. While we create the sound Okar, we should keep our lips open. Once again, inhale. This is 3 times we have been experienced with Okar sound. Now we will start with a Ukar sound. In Ukar sound, our lips will be little bit closer and it will just like a crow nib. O. Ooh. Okay. Now, eyes closed, body upright straight. Inhale.
Once again, inhale. Oh. Once again, last and final for Ukar sound. Now, Makar sound. In this, when we start, we just open our lips for very small time and immediately we'll close our lips. The sound will created from the nostrils while exhaling. Om. Once again, inhale. Start. Om. Last and final, inhale. Rub your both palms together, put on your eyes, open your eyes after watching your palms slowly. Okay. What do you understand with this energy? Did you feel that on a particular zone you are getting energy or not? Or it is just simple Omkar only? Tell me, I want to get a feedback. Sanjana ji, have you done the practice with it? I came in the middle, so at first I did not understand, but later I catched up. Okay, Yeah. no problem. Manoj ji, Yes, yes, I've been practicing this Om 3, like Om, and it gives vibration when you start O, you get vibration to Muladhara and Chakra, and then to Manipura Chakra Om, and then when you say that means it comes to vibration to your upper side of the head, top of the head. It Okay. vibration comes. And you have to practice this, and you will feel when you practice it, you will feel vibrations in all three parts of the body. This is Okay. clear. There's no doubt in it. Aruna ji, have you been? Yes. I do experience the same. Like first, when we began with the first, I could feel in the Muladhara chakra. I mean, after the explanation that you gave, only then I was able to realize it. Before that, all these days when doing yoga, we've been chanting Om, but never, felt like where the vibrations are. But after listening to what you explained, like in Muladhara chakra and Manipura chakra and Sahasradhara Kamal, that is U sound in Manipura and sound in Sahasrara. Yes, I could feel it. Okay, good. Devraji, are you feeling okay now?
No, I didn't practice. Actually, suffering with cough problem and fever. Yeah, I understand that. That's why I didn't ask you the impact of the Omkar you have felt or not. I asked, how are you feeling now? Not good. Anvesha ji, tell me. Swastitika. Swastitika, sorry. I could realize after you explained, but not that much. I guess after practicing more, I can feel that. Okay, no problem. That could be a status of the mind that when it is not focused at that time, you may have several thoughts at that time, it will not work. Okay, we need very much focused while need to feel the energy. We must be able to get inside and total focused. Otherwise, you cannot feel that. Okay, because stress is too much. A lot of things are happening in mind, and it is completely. We had made it as a dustbin. So many things are there. We need to throw it out. Only then we can feel it. Avina ji, I would like to listen from your end. I felt the earth sound in Mooladhara chakra, but and then the Sahasrara chakra, Makar sound, but I wasn't able to feel totally the Okar sound. Okay. Krati ji, you are also not well, so it will be a bit hard to. No, sir, but I felt like when I was chanting Mer sound, I was in a peace state. I love the Mer sound. Okay, that will help you, no doubt. If you, it will vibrate and all the bad kapha will come out with the instant energy. Okay, you try to do it. It will break all the molecules of the bad kapha. And Vidya ji, have you experienced it? Okay, and Dharmendra ji? Yes, yes. I felt the kind of, at least in the part of the head, a better soothing feeling after doing this, and a little vibrations above the neck and the part of the bed while doing the makar sound. So Okay. that was quite Very nice. Now, what is the implementation of Omkar Dhavani in our routine life? That makes sound and must be clear. Lord Brahmaji is creator. It means the energy for creation. It means whenever we are going to put ourselves for creating something, to start business somewhere, we are going to establish something, at that moment we should create this sound at that occasion. आप हवन करने जा रहे हैं, ओमकार की ध्वनि करते हैं, उसमें ओकार की ध्वनि को लंबा करके ओमकार की ध्वनि करो, वहां पर उस क्रिएशन के एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी. जितने भी मंत्रोच्चारण होते हैं, कहीं भी स्थापना होती है, किसी मूर्ति की कुछ भी होती है, जीवंत करने के लिए, उसको सक्रिय करने के लिए, दे क्रिएट दिस साउंड, ओकार साउंड. शंख की ध्वनि में भी आता है, सभी में ये ध्वनि आती है. तभी कोई मूर्ति जीवंत होती है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो ओकार की ध्वनि से होती है, ना कि मकार की ध्वनि से होती है. गेटिंग अ पॉइंट? When you are going to establish any business, any building, we have all the, these are the functions in our culture. These are the customs. Rituals are there. We are following those. But we don't know the scientifically why we follow it. We must have knowledge about it. Until unless you are not following the right path, you are in blank. You are in dark. And in darkness, there is nothing. You have to come out from there. Why we follow the rituals? Why we do all the sanskaras? This is the reason behind it. We have particular reason to do anything. दादी ने कहा इसलिए कर दिया. पहले हमारे घर में खानदान में होता आ रहा है इसलिए कर रहे हैं. वो नहीं चलेगा. Never follow that. Blind faith makes you blank. Know and follow will be fruitful.
Okay, this is a way how we have to follow our culture, why we are speaking, sounding this sound, why we follow omkar before every mantra, while it is itself is a complete mantra. Itself it is a complete mantra. Why we put it? Because it energizes all the sectors in our body. ब्रह्मांडीय ऊर्जा पैदा करता है, उसके बाद मंत्र की ताकत कई गुना बढ़ जाती है. दैट्स वाई किसी मंत्र को, एवर यू हैव बीन ट्राइड विदाउट ओमकार, कैन यू स्पीक एनी मंत्र? एनीबडी? बिफोर स्टार्टिंग एनी मंत्र यू विल पुट ओमकार. पुट्टी लगती है उसकी, वही पुष्ट करता है मंत्र को. मंत्र की ताकत कई गुना मल्टीप्लीकेशन में बढ़ जाती है उसकी. आप करके देखो, नमः शिवाय करके देखो, ओम नमः शिवाय करके देखो, उसकी एनर्जी में अंतर मिल जाएगा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके देखो, नमो भगवते वासुदेवाय करके देखो, एनर्जी में डिफरेंस है. जैसे प्राण निकल गए उसके, मंत्र आधा रह गया. मंत्रों का प्राण क्या है? ओमकार है, प्रतिष्ठित है वो, इसीलिए वो जीवंत है. और इस मंत्र की साधना के लिए किसी गुरु की जरूरत नहीं है. ये तो अपने आप में पूर्ण मंत्र है, अपने आप में पूर्ण मंत्र है. इसके लिए कोई साधना की जरूरत नहीं, किसी आज्ञा की जरूरत नहीं. ये तो सबके लिए है, सर्वत्र है, यत्र तत्र सर्वत्र एको हम ओमकार. ठीक है, तो ये ओमकार की ध्वनि का आधार है. जब हमें किसी चीज को एक्सपेंशन करनी है, सर्कुलेट करना है, बिगर वन, वी आर स्टार्टेड, नाउ वी हैव टू स्प्रेड इट. अब इसको फैलाओगे कैसे? तो उकार की ध्वनि के साथ करा जाता है. अब कोई भी मंत्र करो, उसमें उकार को बढ़ा दो, उकार की ताकत बढ़ेगी, एक्सपेंशन बढ़ेगी. नहीं हो, बिकॉज ऑफ ये आपके मणिपुर चक्र पे पूरा प्रेशर डालता है. जैसे ही प्रेशर डालता है, इट स्प्रेड्स एनर्जी इन होल बॉडी. जहां पे आप खड़े हो वहां पे उकार की ध्वनि कर दो, इट विल स्प्रेड योर एनर्जी अराउंड. आपके ओरे का दायरा बढ़ जाएगा इमीडिएटली. जब भी कभी किसी के व्यक्तित्व पर असर डालना हो, उकार की ध्वनि के साथ 3-4 बार कर दो, आपकी एनर्जी का लेवल बढ़ जाएगा. दूसरे वाले व्यक्ति पर उसका इन्फ्लुएंस साफ दिखाई देगा. साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर ठीक करने हैं, डॉक्टर हो, उकार की ध्वनि के साथ उकार की ध्वनि जोड़ दो और किसी के पास जाके कुछ बात कह दो, उसकी आपकी शब्दों की ताकत देखना, उस पर असर आ जाएगा. दिस इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मंत्रास. अभी योग तो छेड़ ही नहीं रहे, अभी तो बीज मंत्र को छेड़ रहे हैं. योग तो शुरू होगा तो पता नहीं क्या क्या होगा, ज्यादा तो नहीं, पर हाँ स्थिरता जरूर आ जाएगी. क्षिप्त अवस्था में नहीं रहेंगे. जब किसी चीज की पूर्णतः फैलाव हो गया, अब विश्रांति चाहिए भाई, अब ज्यादा नहीं, रिलैक्स हो जाओ, शांति चाहिए. अब फैलाव ज्यादा हो गया, रिलैक्स चाहिए. कभी भी किसी भी चीज में तंग हो गए हो, स्ट्रेस लेवल कम करना है, एंजाइटी, डिप्रेशन, व्हाटएवर ज्यादा हो गया, छोड़ो, आ जाओ वापस, अपने घोंसले में आ जाना है. अपने घोंसले में आने के लिए, और हमारा घोंसला ये है, शरीर नहीं है हमारा घोंसला, हमारा घोंसला ये. आखिर में जाना कहाँ है? व्हाट विल बी द एंड ऑफ द एवरीथिंग? एक ही जगह तो जाना है ना, यही तो आना है सबको, कॉन्शियसनेस में. तो यहीं पे आ जाओ ना. डीप इनहेल एंड देन मकार साउंड. वो आप कितना भी स्ट्रेस भर रखा है अपने सिर में, कितना बड़ा डस्टबिन बना रखा है, इट विल थ्रो आउट. अंदर छोड़ेगा ही नहीं, कोई ताकत नहीं रख दी इसे, इस वाइब्रेशन के साथ. जितने नौजवान लोग हैं अभी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जा रहे हैं, प्रैक्टिस की तरफ जा रहे हैं, शुरुआत है, बिजनेस एक्सपेंड करना है, ओ ऊ का दोनों का पुट कर लो, रिजल्ट आएगा. और जितने बुजुर्ग लोग हैं, जो लोग बिल्कुल स्थिरोचित हो गए हैं कि हाँ भाई अब हमें ना तो बिजनेस एक्सपेंड करना, परमात्मा की कृपा से बस जो है उस पर टिके रहना है, शांति से रहना है, मकार की ध्वनि पे स्थिर हो जाना.
ओमकार भी करो तो मकार पे टिक के करना, उससे आपकी स्टेबिलिटी रहेगी, भागेगा नहीं कुछ, शांत हो जाओगे धीरे धीरे वापस अपने घोंसले में। हम लोग करते क्या है, हमें यही नहीं पता होता हमें कब कहां क्या एक्सपेंशन करनी है। वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट, दैट्स व्हाई वी आर इन अ प्रॉब्लम। हमें शुरुआत करनी है मकार की ध्वनि कर देंगे, हमें एंड करना है ओकार की ध्वनि कर देंगे। इम्बैलेंस तो हम अपने आप कर रहे हैं, नेचर को ही नहीं समझ पा रहे, नेचर क्या कह रही है, मंत्रों को ही नहीं समझ पा रहे हैं। ऋग्वेद में सबसे पहले इसी को बताया गया कि भाई ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश का अपना एक कार्य है, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करना, इनकी ताकत को बढ़ाओ, उस ताकत से तुम्हारे को ताकत मिलेगी, यू विल गेट एक्सपेंड, यू विल, एनर्जी मिलेगी। अरुणा जी क्लियर हो रहा है? कहीं कोई डाउट हो प्लीज बता देना, क्योंकि हिंदी थोड़ा थोड़ा में प्रॉब्लम ज्यादा। तो आपको ये चीज समझनी है। I just want to clear one thing, what you explained. So when somebody is starting some new establishment, business or something new that you want to start, so you have to concentrate more on the sound in Om. Not a, o, o, A-U-M, in A-U-M and O. A-U, O. Sound. So we have to tell that for a long time and finally say, oh, completed. So, but when you, the second one, oo sound is when you want to, I didn't get that second one properly. When you want to, Ooh. no, when do you insist on the second sound? Expansion of the business. Expansion of the business. Okay. भाई सृष्टि की पोषण की जिम्मेदारी पालनहारा कौन है? विष्णु है ना। विष्णु क्या करता है? सबको भोजन देता है, सबको पोषण देता है, सबका विस्तार करता है। छोटा बच्चा है, बड़ा होगा, तो ये जो छोटे से बड़े के बीच का जो एक्सपेंशन है, ये ओकार की ध्वनि है, उकार की, ठीक है ना। आपने कोई काम शुरू किया, वो फैलेगा जरूर, वो उकार का रिफ्लेक्शन है। सृष्टि जब होती है, सृष्टि छोटी होती है हमेशा, उसके बाद उसकी एक्सपेंशन होनी है, वो फैलती है, वो जो फैलेगी उकार की ध्वनि से फैलेगी। इसको आप रियलाइज कर सकते हो कहीं भी। Okay. And the final thing is when you want to settle down, peace, final consciousness, you have to concentrate on sound. मकार, Makar. ठीक है। तो ये सब समझ में आ गया, Yeah. क्लियर है। इस कंसेप्ट को जिसने अच्छे से समझ लिया, उसने अपनी आधी जिंदगी कल्याण की कर ली। Sir, Brahmarandha is equal to Sahasrara Chakra. क्राउन चक्र, यस, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं रखने कहीं भी, एक एक चीज को इतना बारीकी का साइंस है, इसमें अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई ना, यहां से एनर्जी अलग उठेगी, यहां से अलग उठेगी, यहां से अलग उठेगी, इधर कोई और नाड़ी है, इधर कोई और नाड़ी है, इधर कुछ है। हर एक चीज का अपना एक बहुत ही साइंटिफिक वो है। कंफ्यूजन मत रखना, समझ में नहीं आ रहा 5 बार पूछना, लेकिन जब मैं पूछूं उसका आंसर सही देना, क्योंकि हम थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के टीचर हैं, सख्त हैं। ये मत देखना कि स्माइल कर रहा हूं, लेकिन जब लर्निंग की बात आती है, बी पर्टिकुलर फॉर एवरीथिंग। लर्निंग में कोई लापरवाही नहीं। छोटी सी गलती के लिए टोक दूंगा, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीइंग अ टीचर आई हैव राइट दैट। ओके, जब हम स्टार्ट करते हैं तो ओ फिर जो फर्स्ट साउंड होता है, फिर ओ जो लिप्स को करते हैं, ओ जो ओकार साउंड है, और फिर जो मकार साउंड। हाँ बिल्कुल, ओ ओ हाँ। ये वैसे भी देखो ना, ओ बोलो, ओ बोलो, म बोलो। जब माँ बोल रहे हो, प्राण ऊपर की ओर खिंच रहा है। जब ओ बोल रहे हो, नीचे प्रेशर आ रहा है। जब ऊ बोल रहे हो, नोवल पॉइंट पे प्रेशर आ रहा है। करके देखो, ये प्रैक्टिकल खुद करके देखो।
फील करो इसे, अपने आप प्रेशर आएगा। अपने आप लॉक लगते हैं ना, अपने आप बंद लग जाता है, मूल बंद लगेगा, उड़ान बंद लगेगा और जलंधर बंद लगेगा, एकदम खींचेगी एनर्जी। हम लोग ये ऋग्वेद 15-20 हजार साल पहले लिखे जा चुके, इसलिए श्रेष्ठ हो। इसमें फील प्राउड योरसेल्फ कि कितनी मेहनत लगी है चेतना के ऊपर, हमारा काम पहले कितना हुआ है और हम बाद में क्या कर रहे हैं। सर, तो जो फर्स्ट साउंड में जब हम फोकस करते हैं मूलाधार चक्र पे, तो यहाँ पे एक गलती हो रही है, सभी को मैं क्लियर कर देता हूं। हमने अपने बीज मंत्र को ही बिगाड़ दिया। हम ज्यादातर क्या करते हैं, देखो हमारी जो मूल ध्वनि है, ओकार की ध्वनि है, इसको रिलीजियस ना हो, कम्युनलिज्म से बचने के लिए जो धर्मभ्रष्ट लोग हैं उन्होंने आकार कर दिया कि भाई मुसलमान भी बुरा ना मान जाए हमारे। अब मुसलमान ये नहीं सोचेगा कि हमारा अल्लाह ही चलेगा, वो इसके प्रिविलेज नहीं देगा, लेकिन वो इस चीज को इंपैक्ट करेगा कि हम क्या कर रहे हैं। देखो आप अपनी कल्चर को ठीक ठीक समझो, अपनी कल्चर को समझना है आपने। ये आवाज हमारी ओकार की ध्वनि में कहाँ है? ओके, शुरुआत ही करके देखो, अ की ध्वनि आती है क्या ओकार की ध्वनि में? आती नहीं आएगी। और हमने क्या कर दिया, सेगमेंट बना दिए, चलो ठीक है भाई सबको खुश करना। अरे भाई अपने बीज मंत्र को तो खराब मत करो, उसे तो करप्ट मत करो, खुद तो करप्ट हो आप, अपने बीज मंत्र को करप्ट मत करो। बीज मंत्र की ताकत वही रहेगी जो आपको रखनी है। ओम, कभी आम बन जाएगा, ओम नहीं बनेगा, आम बन जाएगा। करके देख लो, आग ओ की मात्रा को हटा दो और बोल के दो तो सर ये मुझे लोग कुछ मतलब मेडिटेशन सेंटर्स में मैंने क्या देखा है, एक मेडिटेशन सेंटर मेरे घर के पास है, वो ओम को म करते हैं, तो मैं क्या यही समझा रहा हूं, तो ये सही नहीं है ना? इररेलेवेंट है। बीज मंत्र ही खराब कर दिया हमारा, मंत्र की सारी ताकत तोड़ दी, खत्म कर दिया, इसीलिए तरक्की नहीं हो रही है। ओके, करके देखो, आप ओमकार की ध्वनि निकाल ही नहीं सकते आ के साथ, कभी नहीं निकाल सकते, आप फील ही नहीं कर पाते। नहीं कर पाओगे, आपने बीज मंत्र ही खराब कर दिया। अब ओमकार की जो आकृति है उसका विज्ञान को भी समझना बहुत जरूरी है। केवल इतने से काम नहीं चल रहा है, इसमें पूरा ब्रह्मांडीय रहस्य छुपा हुआ है, पूरा ब्रह्मांडीय रहस्य छुपा हुआ है। कैसे? ओमकार में पहले ऊ बनता है, इट इज 3 लूप, ठीक है? ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसके पीछे जो टेल है दैट इज नोन एज कुंडलिनी, वो इकार की ताकत है, शक्ति की ताकत है। ब्रह्मा विष्णु महेश बिना शक्ति के कार्य कर सकते हैं क्या? बिना शक्ति के तो कार्य नहीं होगा। इकार शक्ति का आधार है, उसके ऊपर चंद्र बिंदु है, इसके ऊपर चंद्र बिंदु है, यानी कि आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, ये बिंदु, बिंदी लगाते हैं ना, ये ऐसे नहीं लगाते बिंदी हम, इसके पीछे कारण है, यहां की रक्षा करो। किसी का संकल्प इसी से इफेक्ट होता है। किसी के माथे पे देख के आप किसी को कहो कि घूम जा, वो घूम जाएगा, यहां से रेगुलेट होता है, कंट्रोलेट। ये छुपा के रखो अपना, इसीलिए स्त्री किसी गुलाम ना हो जाए, इसलिए बिंदी लगा दी कि भैया इस पे सीधी एनर्जी वहां टकराए ना, किसी गुलाम ना हो जाए, इस ताकत को संभाल के रखना है। और स्त्री का मतलब कुंडलिनी से भी है कि हमारी कुंडलिनी किसी के कंट्रोल में ना रहे, परमात्मा कंट्रोल में रहे।
इसको करके यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दो। ये तुम्हारे ओमकार की ध्वनि है, ये है कंप्लीट ओम। अब हाथ उठाओ जिन्हें ये बात पता थी। सर मेरा तो एक क्वेश्चन है, हाँ जी बोलो जी। तो ये जो बीज मंत्र खराब हो जाता है तो इसका मतलब ये तो चक्र पे कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा इसका फिर? जब हमारा मेन कनेक्शन सोर्स ऑफ एनर्जी से कट जाए तो आदमी की स्थिति क्या होगी? बिजली भाग जाए, आप घर में बैठे हो तो क्या होगा? कुछ नहीं, अंधेरा और क्या। अंधेरा होगा ना, हाँ। बस अंधेरा ही रहेगा, पशुवत जीवन हो जाएगा। हम कुछ जो हमारी सकारात्मक ऊर्जा है जो हमें उत्थान की तरफ लेके जा रही है उसमें सक्रियता ही नहीं है तो क्या होगा? खाया पिया सो गए। चेतन मनुष्य चेतन जीवन के लिए, अपने इवोल्यूशन के लिए, बार बार जन्म मरण के चक्र से बचने के लिए, संस्कारों को खत्म करके निर्बीज अवस्था तक जाने के लिए हम जन्म ले रहे हैं, बार बार सर्कल में आ रहे हैं। और जब हमने अंधेरा कर ही लिया तो हमें क्या मिल पाएगा? जन्म खराब, घूमते रहो यहीं, काटे जाओ चक्कर। हम तो सारे जीव जीवन के उत्थान के लिए आए हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि आप क्या खा रहे हो पी रहे हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें केवल इससे मतलब है हाउ टू इवोल्यूट। इवोल्यूशन हमारा पर्पस है, ग्रो करो, चेतना की तरफ बढ़ो। हम इससे अगर पिछड़ गए तो हमारे हाथ से निकल गया मामला। अंधकार में बैठे बैठे, अंधकार में कीड़े मकोड़े बिच्छू सांप मकड़ी ये सब रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं, ये प्रकाश में आ ही नहीं सकते, झेल नहीं पाते ये लोग। अब वो उस कैटेगरी में जाना है या प्रकाश में रहना है, ये तो आपकी चॉइस है। और ये जानकारी के साथ जीना है, अंधेरे में नहीं। ज्ञान की भी परिसीमा है, अहंकार रहेगा जब तक आप अज्ञानी हो। ज्ञान जब हो जाएगा, आप जैसा सरल नहीं होगा कोई, अपने स्वभाव में आ जाओगे। जहां जरूरत पड़ेगी पानी बन जाओगे, जहां जरूरत पड़ेगी अग्नि बन जाओगे, जहां जरूरत पड़ेगी आकाश बन जाओगे, जहां जरूरत पड़ेगी कठोर बन जाओगे। परिस्थिति के अनुसार आपकी चेतना कार्य करेगी, आप वो करोगे जो सृष्टि चाहती है, परमात्मा चाहता है, वो करोगे। आप अपनी इच्छा के गुलाम नहीं होगे। अहंकार अपनी इच्छा का गुलाम है, मैं को ढूंढता है अहंकार। और परमात्मा के उस संरक्षण में जाके व्यक्ति सब में परमात्मा को ढूंढता है। मकार ना इधर का रहता ना उधर का रहता। बात को समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इतना साइंटिफिक है हमारा सिद्धांत जीवन का। ये धर्म नहीं है, जीवन शैली है। धर्म से इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इसको समझो, अच्छे से समझो। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, डोंट ट्राई टू बी blind for such path. Keep your eyes open, listen proper, follow it, and you will evaluate. You will evaluate. Sure, confirm है। आधे अधूरे जीवन से, आधे अधूरे ज्ञान के साथ तो कोई भी काम नहीं कर सकता। टूटी हुई लकड़ी से कोई सांप को पकड़ लेगा क्या? प्रॉपर डिस्टेंस तो चाहिएगा ना। ये जीवन ऐसे ही है, टूटी हुई लकड़ी से जीवन नहीं पकड़ा जाएगा, लकड़ी पूरी लंबी चाहिए तभी काबू आता है जीवन। और ये जो सृष्टि है ना, ये लोक व्यवहार, भाई हम तो देखो इसमें फेल हैं, हम तो माफी मांगते हैं। लेकिन दुनियादारी के लिए दुनियादारी वाले को भी लकड़ी पकड़ के चलना पड़ेगा, नहीं तो 2 सेकंड में इधर गर्दन में गई, इधर पैर गई सब काट के ले जाएंगे, छोड़ेगा कोई कुछ, नोच के ले जाते हैं। लुटेरे बहुत बैठे हैं। आपको बचना है, ज्ञान के साथ बचना है, ठीक है, समझदारी के साथ। आधे अधूरे ज्ञान के साथ हो ही नहीं सकता। तो ये ओमकार की ध्वनि थी, हर एक मंत्र में चलती है, बीज मंत्र का आधार है, आपके शास्त्रों का आधार है। हाँ जी बोलिए अरुणा जी। You were telling about the moon. It starts from here till where did you say? It starts from this place. This is half moon. चंद्रकला जिसे बोलते हैं, ये चंद्रकला वही है जो भगवान शिव के यहाँ पे टिकी हुई है। वो असल में यहाँ नहीं है, वो ये है।
आपके साउथ में तो यहाँ पे तिलक भी करते हैं ऐसे ही, साउथ में तो करते ही तिलक चंद्र बिंदु का है, महाराष्ट्रियंस। ठीक है, वो तो करते ही यही है, वो इंडिकेशन है प्रॉपर। और उसके बाद बिंदु यहाँ पे वो शरीर से ऊपर उठा होता है, वो केवल शरीर के अंदर नहीं है, वो यहां पर है ऊपर, जिसे ब्रह्मरंध्र बोलते हैं, वो यहां पे ऊपर टिका हुआ है। वो शरीर की एग्जिस्टेंस को कहता ही नहीं कि शरीर की एग्जिस्टेंस है, इट इज बियॉन्ड फ्रॉम द बॉडी, यहां से ऊपर। अपनी बॉडी का आकार देख लो आप अपनी स्पाइन को देखो किस शेप की है, खुद चेक करो, स्पाइन इसी ढंग से आती है ना। आपको भगवान ने पूरा स्वरूप बनाया, अपना अपना पूरा स्वरूप, पूरे अथोराइज हो आप भगवान बनने के लिए, पर जान लो कैसे। ब्रह्मा विष्णु महेश, मूलाधार चक्र पे स्पाइन की टेल है, ये चंद्र बिंदु है, और यहां पे कितना साइंटिफिक बताया जा रहा है, रियलिस्टिक है कि नहीं है? बहुत ही रियलिस्टिक है। एक्यूरेसी के साथ एक एक चीज को कितना गढ़ा है परमात्मा ने, कितना, अगर विश्वास नहीं होता ना परमात्मा पे, इन चीजों को रियलाइज कर लोगे तो अपने आप कह दोगे हाँ देयर इज समथिंग देन द बॉडी। इस ढंग से हमारे पूरे शास्त्र, पूरी एजुकेशन बहुत ही छिपे हुए शब्दों में है। इट इज नॉट वेरी मच ओपन टू अंडरस्टैंड। जिसको ज्ञान हुआ, परमात्मा ने जिसको यह बुद्धि दी, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया ले इस साधारण बुद्धि से, साधारण आंखों से नहीं मुझे देख पाएगा, ले मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं, ज्ञान की दृष्टि दी, तब यह समझ में आया कि वास्तविकता क्या है। तब समझ में आएगा कि आप लोग क्या हो, अपने आप में पूर्ण परमात्मा कैसे हो, आधे अधूरे ज्ञान से नहीं, अब धीरे धीरे। और ये भी एक और बात बता दूं, मैंने आपको केवल इंफॉर्मेशन दी है, ये केवल इंफॉर्मेशन है जब तक आप सुन रहे हो। इंप्लीमेंटेशन जब हो जाएगी तब ये नॉलेज हो जाएगी। दोनों में अंतर है। पोथी पढ़ जुग मोया, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम के पढ़े से पंडित होए। जो व्यक्ति पढ़ता रह गया, उसने अपने दिमाग में कचरा इकट्ठा कर लिया, फिलोसफी, इधर का ये तर्क, इधर से ये तर्क, इधर से ये तर्क, इधर से ये तर्क, एक दूसरे की बात को काटते हुए वहीं नष्ट हो जाते हैं। संशय विनिश्यति विवेक, संशय विवेक को नष्ट कर देता है, और जहां विवेक नहीं होती वहां विनय नहीं होता, और जहां विनय नहीं होता वहां विनम्रता नहीं होती, और जहां विनम्रता नहीं होती वहां अहंकार होता है, और वो तामसिक हो जाता है। जिस व्यक्ति ने ज्यादा इकट्ठी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली ना, वो एक बात से, एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान को काट देता है, तर्क ढूंढता है उसमें, और इसी के चक्कर में पड़ा हुआ व्यक्ति समर्पण नहीं कर पाता, अहंकार में मर जाता है। सर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी प्लीज। बहुत ज्यादा सवाल तो नहीं पूछ रही, मैं तो हूं इसीलिए। वो एक्चुअली मैं कब से एक चीज को सोच रही हूँ कि ऐसे मैंने अपने खुद के टीचर्स को देखे हैं जिन्होंने पीएचडीयां की हैं, मतलब ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, पीएचडी किया, और पढ़ते गए। मतलब मेरी खुद की टीचर रिसेंटली रिजाइन, फिर से वो पढ़ रही है, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, मतलब रियल लाइफ में, मतलब स्पिरिचुअल लेवल में नहीं, मतलब कि जो ग्रेजुएशन मास्टर्स जो भी है इस टाइप में। तो क्या ये भी मतलब कचरा इकट्ठा कर रही है, या फिर इसका मतलब यूज क्या है? इतना पढ़ के करना क्या है? नानक देव जी कभी स्कूल नहीं गए, कबीर कभी स्कूल नहीं गए, अच्छा, कभी स्कूल नहीं गए, और गुरु ग्रंथ साहिब में सबसे पहले गुरु हैं।
रियलाइज करना है कि ज्ञान क्या है। एक ज्ञान होता है दुनियादारी का, Na+Cl, NaCl, ये है फिजिकल वर्ल्ड का। लेकिन जब चेतना की बात करेंगे, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, ना यहाँ पे Cl है ना Na है। कॉन्शियसनेस की बात करो, आधी अधूरी बात नहीं करनी है। फिजिकल सब्सटेंस जो होंगे, जो आप गेन कर रहे हो, इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हो, ये दुनियादारी में तो शायद कहीं तक काम आ जाए। हाँ, इससे ये तो फायदा होगा कि भाई हमें ये पता चल गया यहाँ पे आग है, इससे बच लो। फिजिकल वर्ल्ड में केवल अंदर की जो आग है उसको शांत नहीं करना, उसे तो उठा के रखो, वो कल्याण करेगी। इससे बचना है दुनियादारी से, ये सिम्टम है इसके, ये दुनियादारी में काम आती है, इससे बचना है। आध्यात्म में उस आग को उठाओ ताकि आपका कल्याण हो, ज्ञान अपने आप निकल के आ जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई? जी जी। और कोई क्वेश्चन? मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तरीके से वो जो कर रही है, मतलब फिजिकल वर्ल्ड रिलेटेड वो मास्टर्स पीएचडी करती रहती है, जो अभी तक उन्होंने 7 इम्प्लीमेंटेशन में ना लेके आओ, until unless you are collecting the information and it is not implementing in your life to evaluate, till then it is useless and it is garbage. उसको जीवन में उतार तो दो। आपने साइंस पढ़ी, साइंस पढ़ के भी आप कुएं में कूद रहे हो, तो आपकी वो साइंस पढ़े किस काम आई? आपकी पढ़ी हुई इंफॉर्मेशन जो है अगर इंप्लीमेंट ही नहीं हो रही आप पे, तो वो तो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में, भाई सीधी सी बात है, आप एनर्जी जनरेट कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो, उसका यूज कहीं है नहीं, तो ये क्या करेगी? ब्रस्ट करेगी ना, बवाल पैदा करेगी, यहाँ दिमाग को फाड़ देगी, स्ट्रेस पैदा करेगी, एंजाइटी पैदा करेगी, और सीधा काम तो कर ही नहीं पाओगे। आप अभी ये देख रहे हो, अभी ये देखोगे, इससे तुलना करोगे इसकी, इसकी तुलना करोगे इसकी, समर्पण नहीं होगा, यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड। डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण भी एक है, विवेकानंद ने कोई ग्रंथ, कोई चीज नहीं छोड़ी, सबको देख दिया, अच्छे से देख दिया। अल्टीमेटली क्या हुआ? मुझे रास्ता नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कर ले इकट्ठा, मम माया दुरत्या, करता रहे, समझ में नहीं आएगा। समर्पण करते ही 1 सेकंड में, जैसे ही कहा तस्मात् योगी भव अर्जुना, और अर्जुन ने कह दिया शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, इतना कहते ही ले अब तू मेरे लायक हो गया है, अब मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं, देख मेरा असली स्वरूप क्या है। बिना समर्पण के तो नहीं होगा ना, सरेंडर तो करना पड़ेगा। जी कहो, और भी आगे चीजों से अहंकार बढ़ जाएगा, मेरे पास मेटेरियलिस्टिक लाइफ में ये है वो है, ये अहंकार बढ़ाएगा, काम कहीं नहीं आएगा। गरीब आदमी का जीवन नहीं जीता, जो कम पढ़ा लिखा है क्या वो जीवन नहीं जीता? उसके जीवन में कौन से रोड अटक गए? बस ठीक है ये गुजारा कर लेगा, उसने ज्यादा इकट्ठा कर लिया, लेकिन आत्म कल्याण की तरफ तो लेके नहीं जा रही ना दोनों चीजें। चेतना गरीब को भी उतनी दी और अमीर को भी उतनी दी, कल्याण के रास्ते में तो दोनों को चलना पड़ेगा। इतनी नॉलेज तो जानवरों को भी दे दी कि भाई तुझे ये खाना है, ये पीना है, ये सोना और ऐसे करना, इतना तो उसे पता है। अगर तुम कॉन्शियस होके भी अनकॉन्शियस पड़े रहो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू पीपल एंड द एनिमल? एनिमल इज ऑन द बेस ऑफ इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट के बेस पे काम कर रहा है, आप किस बेस पे काम कर रहे हो? कॉन्शियसनेस है तो मैटेरियलिस्टिक लाइफ को कलेक्ट करने में आप जीवन बिता दोगे, तो आपका सही मायने में इंस्टिंक्ट बेस्ड है क्या है? जी सर, अब मेरा एक और क्वेश्चन है, हाँ जी, ये बोलो। बस में वर्क और स्टडी मॉडल करके बोलते हैं कि आप इसको इम्प्लीमेंट भी करो, मतलब पढ़ो भी और इम्प्लीमेंट भी करो हर रोज, तो क्या ये एक मतलब होलिस्टिक मॉडल है? क्या ये अच्छा मॉडल है, मतलब टू गेन गुड नॉलेज अबाउट योरसेल्फ एंड इन द फिजिकल वर्ल्ड एंड आल्सो अपनी मतलब चेतना की ओर? आपका जो क्वेश्चन है ना, ये मेरे को थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, इको हो रही है साउंड।
और इस चीज को, अगर कुछ चीजों को कभी आप सभी के लिए है, जब भी कोई क्वेश्चन आए ना, उस क्वेश्चन को दिमाग में बैठा के आंख बंद करके बैठ जाओ, कुछ मत करो, उसकी डेप्थ को देखो, क्वेश्चन कहां से उठ के आ रहा है, आपकी नॉलेज से उठ के आ रहा है या आपके इंफॉर्मेशन से उठ के आ रहा है। आपने जो कलेक्ट इंफॉर्मेशन की है उसमें से अगर आप ले रहे हो तो इट इज जस्ट लाइक आप एक शब्द को दूसरे शब्द से काट रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी एंड टाइम। अगर आपके ये हार्ट से उठ के आ रहा है, ये इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है आपकी, तो फिर आपके जीवन में क्रांति आ जाएगी। इंस्टेंटली आप जीवन में वहीं बैठ जाओगे जहां खड़े हो, वहीं बैठ के कह दोगे परमात्मा यहां आएगा और आ जाएगा। इस ढंग से समझो कि ये आपका जो क्वेश्चन है, आपने उसको कितना एनालाइज किया अपने अंदर। जब उसका आंसर नहीं मिल रहा, आप उसके लिए रोए, जैसे बच्चा दूध के लिए रोता है, माँ के पास भाग के जाता है, रो के जब मांगता है तब मिले, उसकी कीमत बन जाती है। और इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट करते रहो, ये बाद में यही आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। जी मैं इस पे कुछ कहना चाहूंगा सर जी। हाँ जी, बताइए। और अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि कबीर जी के बारे में और गुरु नानक जी देव के बारे में, ऐसे ही कालिदास या तुलसीदास, इन्होंने इतना ज्यादा ध्यान किया कि इनको जो उत्पत्ति हुई, इन्होंने जो किताबें लिखी, वो लोग पढ़ते हैं ना कि इन्होंने किताबें लिख के पढ़ी। तो जैसे संजना जी ने कहा कि 3 स्टेजेस हैं। जैसे आजकल इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, इतने सोर्सेज इंफॉर्मेशन के, उसके बाद उसको कन्वर्ट करना है ब्रेनस्टॉर्मिंग करके नॉलेज में, और उस नॉलेज को अध्यात्म के जरिए विजडम में करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज वो जो इन्फॉर्मेशन है, अगर सही यूटिलाइजेशन न हुआ तो बहुत डेंजरस है। और नॉलेज भी है, बट हमें विजडम नहीं होने की वजह से आज समाज में बहुत से अच्छे अच्छे पढ़े लिखे, जैसे इन्होंने कहा 7 या 8 क्वालिफिकेशन लिया, पीएचडी किया वगैरह किया, और वो जरूरी है काम करने के लिए, स्किल जरूरी है, जिससे कि हमें अपनी नौकरी में अपनी चीजों को करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर है, चाहे डॉक्टर है, कोई, सबको स्किल एक जरूरी है। लेकिन इतने स्किल के बाद हम सुनते हैं कि भी डॉक्टर्स लोग सुसाइड कर रहे हैं, डॉक्टर जो साइकेट्रिस्ट हैं वो सुसाइड कर रहे हैं खुद भी। तो विजडम की कहीं ना कहीं कमी है, ये सब चीजें हैं। और आपने बोला जो अध्यात्म की, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट और इस तरह से जीवन में उतार नहीं पाए, और एक कारण है कि जिससे सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये जरूरी है बहुत। आपका बिल्कुल सही वो है। इंफॉर्मेशन, हमें कचरा जो दिमाग में भर जाते हैं ना, उसके बाद हमें रास्ता ही नहीं मिल पाता, इतना कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि क्या चीज ठीक है क्या नहीं। अब वाल्मीकि को एक बार नारद जी ने कह दिया मरा मरा कर ले जाता कल्याण हो जाएगा, और उसने कर लिया, फॉलो कर लिया, ब्लाइंडली फॉलो कर लिया, रिजल्ट आ गया। अब आजकल विवेकानंद कितना परेशान था 30 साल तक, खूब भटका कि प्रभु क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इतना पढ़ लिया कुछ मिल ही नहीं रहा। तब कहते बेटा सरेंडर तो करके देख, मां सामने खड़ी है। ये चीज गौतम बुद्ध जी ने खुद जाके जब 20-30 साल में ढूंढते रहे, जाके मिला उन्होंने, तब जाके बताया पूरी दुनिया को। गौतम बुद्ध जी के बारे में अगर बात करें तो भी सेम। बहुत बहुत बढ़िया। देखो, इंफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंटेशन में लेके आओ, उससे रियल नॉलेज होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, उसको फिर आप विजडम में लेके आओ। कि आपका यहाँ, इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है, बहुत बढ़िया। यज्ञवालक के जी बड़े ही चेतन व्यक्तित्व के थे। यज्ञवालक जी कहते कि क्या है परमात्मा, क्या है? मैं खाता हूं, पीता हूं, सोता हूं, ये परमात्मा है। कहते बेटा थोड़ा फोकस कर, फिर ध्यान में गए। अब दोबारा आए, कहते अरे खाना पीना सोना तो एक शरीर को स्थिर करने का साधन है, लेकिन श्वास अगर मैं ना लूं ना तो मैं मर जाऊंगा। क्या हुआ? अब यहां पे परिवर्तन आ गया, चेतना आई कि भाई खाना पीना ठीक है, लेकिन अगर सांस नहीं लूंगा मर जाऊंगा। अब वो कहते हैं कि भाई आगे बढ़ो। अब उन्होंने देखा कि जब मन से विचार रुकने शुरू हो गए तो सांस भी रुकना शुरू हो गया। अब उन्होंने कहा भाई ठीक है, अब समझ में आ गया कि प्राण भी नहीं है, प्राण के साथ मन है, तो मन ज्यादा ताकतवर है, मन को रोको। अब मन रोका जैसे ही तो स्थिरता आई, एकाग्रता आ गई। एकाग्रता आते प्रकाशित हुए, ज्ञान हुआ, विजडम आई। विजडम के बाद कहते बस ये है, कहते बेटा भी रुक तो जा, ये तो जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी वो रियलिस्टिक फॉर्म में कन्वर्ट होगी, विवेक ख्याति पैदा होगी, अभी यहां से आनंद आएगा। देखो जाके, अब जब देखा कि अरे मैं तो कहीं और हूं, ना यहाँ पे ज्ञान है, ना बुद्धि है, ना कुछ है, ना विवेक है, ये तो कुछ और ही है।
कहते ये, कहते नहीं, इसको जो देख रहा है वो असली है, जो विवेक ख्याति के बाद आनंद को भी अनुभव कर रहा है। और जो तू बोल रहा है, जिसका अनुभव तुमने लिया, जो बोल रहा है वो तू है। उसके बाद याज्ञवल्क्य जी को समझ में आया कि चेतना आत्मज्ञान के, सेल्फ रियलाइजेशन के बगैर नहीं है। ये आनंद भी हम भोगते हैं, समाधिस्थ होकर भी आनंद को, आनंदानुगत समाधि, अस्मितानुगत समाधि की जब बात करें तो वो भोगते हैं हम, वहां संस्कार काटते हैं अपने। उसके बाद जब चेतन हो जाता है, निर्बीज होता है, तो स्यापी निरोधा सर्व निरोधे, निर्बीज समाधि जब सब रुक जाता है, उसके बाद कुछ नहीं रह जाता, तब जाके निर्बीज समाधि होती है, वहां पे स्थिरता आती है। इतना लंबा पाथ है। हम सोच रहे हैं कि योग के 2 कागज के टुकड़े लिए और बन गए योगी। कहीं कहीं जन्मों से चक्कर काट रहे हो, कहीं कहीं जन्मों से, और आप लोग ऐसे काटते रह जाओगे अगर ये किताबों के चक्कर में पड़े रह गए, कागजों के चक्कर में पड़े रह गए। इसको इंप्लीमेंट करो। योग में आए हो तस्मात योगी भवार्जुना, योगी बनो। योगी बनोगे तभी कुछ होगा। पुरुषार्थ करना पड़ता है, अभ्यास और वैराग्य करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, समर्पण करना पड़ता है, जीवन को तरने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और जब करते हो उसके बाद कह देते हो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मेरा कर्म करने का अधिकार है, तुझे देना है दे दिए, मैं तो बैठा तेरे इंतजार कर रहा हूं, यहां समर्पण आएगा तब जाके कहीं कुछ स्थापित होगा। मैं करता हूं, काम खत्म है। तो पुरुषार्थ भी करो, समर्पण के साथ करना कि प्रभु मैं ये करने जा रहा हूं, देख लेना, गलतियां बहुत होंगी, आप हो संभालने वाले। अगर ऐसे करके जाओगे फिर संभल जाएगा। मैं करता हूं और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, गलत फहमी से दूर हो जाना भाई। योग में अगर आओगे तो बिना समर्पण के, स्वच्छ हृदय के, सच्चे मन से और स्पष्ट होकर आओगे तो योग 1 सेकंड का खेल है। अष्टावक्र जी के पास जब जनक जी का वाक्य शुरू हुआ, कहते प्रभु कितनी देर का खेल है? कहता इतनी देर का खेल है कि जैसे रकाब पे पैर रख के ऊपर घोड़े पे बैठना, पैर रख के घोड़े पे बैठना इतनी देर का खेल है। इतने में हो जाता है, एक क्षण भी नहीं लगता। लेकिन प्लेटफॉर्म तो तैयार हो उसका, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। इतना जनक ने कर लिया था, तब ज्ञान था, तब इतनी बात कही थी। बस पलटना है, ए गया और हो गया। बड़ा झीना सा पर्दा है, झीना सा, पतला सा, ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल। जैसे आजकल के मॉडर्निटी में ना, शादी ब्याह में जाते हैं, चुन्नी जो होती है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। होती नहीं है लेकिन खर्चा पूरा होता है उसका। बिल्कुल इतना ही झीना सा पर्दा है, सब दिख रहा है लेकिन रियलाइज नहीं हो रहा है। आदि अधूरी नॉलेज के साथ नहीं। कागज के टुकड़े लेने के लिए आए हो वैसा हो जाएगा, लेकिन देखो अगर मौका मिले ना, सही सही पकड़ के चल लेना, जीवन में मार नहीं खाओगे। योग सीख के जाओगे तो पक्का सीख के जाओगे। भगवान ने हमें मौका दिया है और आपको मौका दिया है। कुछ आप हमें सिखा देना, कुछ हम आपको सिखा देंगे, बस। ठीक है ना? तो आज के लिए मेरे ख्याल से हम टाइम से थोड़ा आगे निकल गए, राइट? जी जी। तो आज यही संपन्न करते हैं और धन्यवाद आप सभी का। आप शुद्ध जीवात्माओं को नमस्कार, बार बार आपके अंदर बैठे हुए भगवान को बार बार नमस्कार। आनंद करो।